आप सबको स्मरण होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय हम लोगों ने पूर्वोत्तर के लिए एक अतिरिक्त मंत्रालय की स्थापना की थी और आज बहुगामी कार्य जो बहुत सारे काम इस पूर्वोत्तर में दिखते हैं, डोनर अपने आप में एक सेंट्रल फोकस का पार्ट बनता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ेगा कि जहां आज देश में कांग्रेस की सरकार है और असम में भी कांग्रेस की सरकार है और पूर्वोत्तर में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भाग असम समेत इज बिकम अ पॉकेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. It symbolizes terror in this region. Extortion is an industry. Corruption is deep-rooted, which is not very unusual for the Congress party. It's very deep-rooted. It's not isolated with what is happening in the country, whether it's Adarsh Housing Society scam, whether it's the 2G scam, whether it is the Commonwealth Games scam. You could pick up anything. And I think the Northeast, of course, is a part of the entire big strategy of the Congress party to perpetrate scams. And of course, extremism. Undergrowth, underdevelopment, pilferage. All this has become an ingredient of the Northeastern state. And we can feel the pulse of unrest of the people of the Northeastern region. And the total ball game of the Congress party to perpetrate its regime of corruption and mismanagement is largely visible right from Assam to Arunachal Pradesh to Meghalaya to Mizoram. Talk of any of the states. We have witnessed, and there is a noted demographic change in many of the constituencies in Assam. We are aware of that. And there have been constituencies, and we'd like to reiterate again, that the national increase of voters at an average is 1.67%. But the average increase of voters in the northeastern states in general and in Assam in particular has been mind-boggling. It ranges between 10 to 22%, which is absolutely impossible, other than the fact that it denotes a massive infiltration, a massive influx of Bangladeshi nationals in this region. This is a dangerous sign. The Bharatiya Janata Party would call it a very disturbing, and it would shake up the very basis of the democratic setup in the northeastern states. The Foreigners Act is applicable across the country. But in Assam, there is an exemption which was granted through an IMDT Act. The Supreme Court, not once but twice, and in 2005 it called it, the Supreme Court, the highest court of the country, called it an aggression on India. The IMDT Act is an aggression on India. The NDA government, we in fact did our best to undo it. But unfortunately, we could not complete the process. And after the Supreme Court ruling, the UPA 1, which came into existence, undid the Supreme Court ruling by amending that act and establishing that it is those people who charge, जो आरोप लगाते हैं घुसपैठ का, उनको प्रमाणित करना है कि घुसपैठ
जो घुसपैठी इस क्षेत्र में है, उस घुसपैठी के ऊपर प्रमाणित करना कि ये बाहरी है, यह आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर है। और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रति यहाँ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यहाँ के आबादी के जो परिवर्तन करने का कांग्रेस का अभियान है, और ये मूल रूप से राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी इज डिटरमिन्ड टू एंड दिस इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स। भारतीय जनता पार्टी इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट the northeastern states from such influx of foreigners. But at the same time, and I would like to repeat it very categorically, that the Hindus who have migrated from Bangladesh out of persecution, they shall not be treated, and again I would repeat, they will not be treated as outsiders. They are in the category of displaced persons because they had to leave their homeland out of persecution. And I'm very clear about it. The Bharatiya Janata Party is very clear about it. The vote bank politics, the politics of appeasement, has destroyed the basic fabric of this region. The Bharatiya Janata Party also takes note of the fact that prior to every elections in Assam, जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का नोट लेती है कि जब भी असम का चुनाव आता है तो उल्फा के साथ बातचीत शुरू होती है, और क्षणिक बातचीत करके इस राज्य में उल्फा की राजनीति के बदौलत अस्थिरता पैदा की जाती है। और हमने देखा कि फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, और यहां तक कि पड़ोस के भूटान ने भी इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि भूटान ने जब से इस अभियान को भारत सरकार के साथ एनडीए की सरकार के समय से उल्फा उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था, तो भारत सरकार के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इस प्रकार का अपने होमलैंड में ऐसे तत्वों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन आज भूटान सरकार भी यह आक्षेप लगाती है कि भारत सरकार का रुख और रवैया साफ नहीं है। द भारतीय जनता पार्टी डिमांड्स दैट एनी इंटरैक्शन, एनी डायलॉग विथ उल्फा शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म, and should be sustainable, and within the ambit of the constitution, within the framework of the constitution, the Bharatiya Janata Party would like to make it very, very clear. इसके अतिरिक्त एक और विषय जो आज के प्रस्ताव में है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के भ्रष्टाचार का है। और इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने मूव किया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सांसद श्री तपिर गाव ने इसका अनुमोदन किया है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के करप्शन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी के निर्देश पर एक रिसर्च किया गया है, एक कंपाइलेशन किया गया है, और उसका आज उस पुस्तक का विमोचन, करप्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट, द लूट, has been unveiled by Shri Lal Krishna Advani, which contains a complete dossier of the corruption in the northeastern states, which have crossed all unmanageable and all unimaginable proportions. Just to tell you some of the highlights of this: government ministers' officials loot in the northeast. A small booklet and document has been brought out. पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लूट के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसका विमोचन आज
जनता तक पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को लोगों को पहुंचाने के लिए और देश के लोगों को पहुंचाने के लिए, इसका विमोचन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया। क्योंकि आप सब पूर्वोत्तर के हैं, जो पूरी सूची है, चाहे वो पीडीएस का असम में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, जो पीडीएस का स्कैम पूर्वोत्तर के क्षेत्र में है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। असम में जो जहां लगभग 1 लाख लोगों को अवांछित तौर से गरीबी रेखा के नीचे लाया गया है, उसका अपने आप में जो स्कैम है वो लगभग 1,000 करोड़ का है, जो ब्लैक मार्केट में जा रहा है वो पैसा। जो नॉर्थ कचार असम हिल ऑटोनॉमस काउंसिल का जो भ्रष्टाचार है वो लगभग 1,000 करोड़ का है। मणिपुर के लोटक लेक की जो सफाई का जो भ्रष्टाचार का और सीएजी का दावा है, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री के अपने संबंधी को दिया गया, वो लगभग 300 करोड़ का है। ये सूची बहुत लंबी है और इस पुस्तक में इन सभी भ्रष्टाचार जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र का है उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। यह आपके बीच में बांटा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इज डीपली कंसर्न्ड the shocking state of affairs in the northeastern region, the corruption which has crossed all proportions, the ministerial loot, the government loot, the Congress loot is an extended arm of what is happening in the union government and that being done by the union ministry. It's just a telltale sign of the Congress government. The country is already reeling under a price rise situation, 18%, a whopping inflation situation, riddled with all-time corruption, whether it's the adjudication of the tribunal on the Kotrochi, on the Howitzer arms deal, the stricture of the Supreme Court, the stricture of the court on Kotrochi, the Adarsh Housing Society scam, the 2G scam, the Commonwealth Games scam, और आज जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है ये भ्रष्टाचार लिप्त वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी विषयों को लेकर के देश भर में अभियान चला रही है। भ्रष्टाचार और पूर्वोत्तर के भ्रष्टाचार, आज के प्रस्ताव में पूर्वोत्तर क्षेत्र का भ्रष्टाचार का विषय लिया गया है, घुसपैठ का विषय लिया गया है, आतंकवाद का विषय लिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी देश के पैमाने पर भ्रष्टाचार के विषय का प्रस्ताव लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रतिपक्ष की भूमिका, आज हमारी सरकार 9 राज्यों में है। आज देश भर के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री और सरकार के बाहर के कार्यकर्ता आज हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ, जनता के साथ जाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो, वेदर इट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वेदर इट इज एट द नेशनल लेवल, वी विल टेक अप दिस क्रूसेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी।